Hello, Sindhu. It's an honor to have you here. No, thanks for having me. Yeah. Can you share your story in a bit? Like, who is Sindhu Biswal and what is your experience so far? What kind of creators with whom you work? Okay, I'll give you a timeline. So I was a sound engineer slash mixing mastering engineer at a local production house owned by Z. Was doing that for 4 years. Then started a company. It was a social networking app. Built it. Co-built it with a lot of people. Screwed up a lot of things. Then joined Paytm Insider, which is now called Zomato Car District. I was doing performance marketing of events and movies vertical. Then I was the first growth guy at Pocket Aces. Pocket Aces was the parent company of Filtercopy, Loco, Jambo, Nutshell, and Dice Media. I was responsible for both of all these channels. Then I was teaching at primarily teaching and working with Better Half. I was teaching with Growth School. I taught a lot at ISB, a lot at IIMs. I taught a lot. I think I might have taught 20,000 creators plus founders until now. And that is then Jupiter. Then I was an advisor of Raj, Finance with Sharon, some USK companies, some USK media YouTube channels. Um, then in the last 2 years, I am building BuzzLab. We have worked and worked with Practo, Fardeezy, Razorpay, Wakefield, Acco Drive. So a bunch of larger good brand names that we have worked with, and yeah, that's what I have been up to. I still teach. I teach at Masters Union, so I'm kind of a guest faculty there. Okay. I have been teaching at Masters Union for the last two years approx. XLRA, Gurgaon. I train a lot of creators who keep on coming to me personally. Some large influencers, Bollywood celebs. Yeah, That's all. that's simple. So Okay. yeah. तो आपने एक स्टोरी शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे दैट यू वांट टू मीट द बैंगलोर पीपल बाय योर Yeah, इवेंट्स yeah. क्रिएटर्स तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था मतलब व्हाट यू वर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू कुछ नहीं खाली बैठा हुआ था। I was like कि I want to meet Bangalore creators और उनका थोड़ा दिमाग खराब करना है मुझे by asking existential questions. That was honestly my perspective and thought. I just like doing that because that gives me also enough idea कि every time I'm asking a tougher question to someone and I see that वो self introspection करके कुछ निकाल रहा है या निकाल रही है, आई गेट टू लर्न अलॉट और मुझे खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, उनके लाइफ में कुछ कोई रोक के थोड़ा उनको थोड़ा अलग ट्रैक पे थोड़ा लेके जा रहा है, सो आई जस्ट गेट अ लॉट ऑफ किक फ्रॉम दैट. I posted that. I got maybe 100, 200 comments and DMs. uh, I have scheduled maybe 3 to 4. मैं बहुत चूजी हूँ क्योंकि मैं मिलने जा रहा हूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा ये है, एंड आइदर इट्स अ सेटअप. So like this is a setup. This is still fine. There is something in me as well. ये वीडियो निकलेगा, वीडियो में से मैं कुछ स्टार्ट लूंगा, रील्स मेरा कुछ फायदा हो जाएगा. बट अगर मैं मिलने जा रहा हूँ, इट ब्लडी हैज टू बी समथिंग वर्थ इट कि ओके ठीक है, वो क्रिएटर या तो क्लियर है, मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा. मैं ऐसे खाली फुकट नहीं मरता हूँ वहाँ पे. So a lot of people have reached out, and 2 to 3 things I realize is, and I'll just share this insight with you. Everyone wants to be an informative creator right now, even if they are doing fashion and all. So they are like, मुझे कोई seriously नहीं ले रहा है. So this feeling of not taking this seriously is there with a lot of creators. वो एक मेरा realization हुआ in the last 2 to 3 months. And not just with Bangalore creators. जितने भी creators मेरे को reach out करते हैं, ये मैं common better notice कर रहा हूँ. So there are two, India अभी 2 parts में बटा हुआ है. There are creators और infotainment creators. कुछ सिखाते हैं quote and quote, let's say. वो सिखाने का जरिया कुछ भी हो सकता है. I am teaching, let's say, infotainment, or I have a format that just sounds quote and quote nerdy. May not be I'm teaching. ये वाले जो जत्ता है और ये जत्ता पहले ग्रो नहीं करती थी. ये क्रिएटर्स पहले ग्रो नहीं करते थे. नाउ सडनली दीस क्रिएटर्स आर ग्रो लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑफ अ गट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट. कभी किसने सोचा नहीं था 5 साल पहले ये कैसे होगा कि ये कैसे हो गया. डॉक्टर्स को लोग फॉलो करने लगे ही ये वो. नाउ ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली जन्म ले रहा है. इट इज द सेम 100K पॉपुलेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल. उसी में से अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो अटेंशन कहीं से तो जा रहा है. सो अटेंशन जा रहा है कहाँ से? वो अटेंशन जा रहा है ओल्ड mainline mainstream in influencing content creation से, which is your dance, music, any art form. तो इन लोगों को लग रहा है कि शायद इसमें मैं नहीं हूँ, या मैं
कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसीलिए शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि व्हाई एम आई नॉट ए लाइक आई हैव बीन लाइक मुझे बहुत सारे 2 मिलियन प्लस वाले लोगों का ये करा हुआ है, हेलो सिद्धू यार हमें कोई मेटा दी इवेंट पे पोडियम पे बुलाता नहीं तो गिव अ गेस्ट लेक्चर, हमें लोग बुलाते हैं आओ नाच के चले जाओ, तो क्या मैं वैल्यू नहीं है मेरी। वैल्यू नहीं है मेरी, व्हाई कांट, तो मैं एंड मेरा जवाब सिंपल होता है, आपने ना आप बस डांस ही क्यों अपने रील पे, आपने कभी डांस के फॉर्म को लेट्स से आप कल से चालू कर दो हाउ टू यूज डांस एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, सडनली अलग आ जाएगी, सडनली अब परसेप्शन विल बी ठीक है, कॉर्पोरेट्स में जाके लेट मी क्रिएट अ म्यूजिकल सेशन फॉर अ डी स्ट्रेसिंग मैकेनिज्म व्हिच इज अ मेंटल हेल्थ प्लस डांस कॉम्बिनेशन, सो ये बहुत ज्यादा एक लेफ्ट आउट फीलिंग है बहुत लोगों में, और मुझे लगता है उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बन सकता है इफ यू आर एबल टू कंबाइन आर्ट फॉर्म एंड एनी बिजनेस कॉर्पोरेट कैपिटलिस्टिक इंजन, मस्त क्रिएटिव बन सकता है या अभी एक रिपोर्ट आई गोपाल की शर्मा उपाध्याय ने शेयर की थी कि आउट ऑफ 2030 का क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी होने वाली, लेकिन उसका से सिर्फ 8% लोग ही है जो एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर पाए, बट बाकी के लोग उस रेस में भाग रहे। सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू दोस क्रिएटर्स कि कब तक भागना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, किस फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, मतलब इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन राइट, सबका अपना अलग अलग निश, So लेकिन there is something What is called this? Pareto principle. सुना होगा हम्म, 80-20 rule. हम्म, दुनिया के कोई भी फील्ड में 20% people will make most money, 20% people will be this, 20% people will be that. So इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी ठीक है this is just happening in the influencing market or whatever. Marketing net की मान लो 5% marketers are earning more than 1 crore. 8% प्लस मार्केटर्स या 10% प्लस मार्केटर्स अप्रोक्सीमेटली आर अर्निंग मोर देन 50 lakhs, बाकी सब बीच के रेट में भी नहीं है, बाकी सारे के सारे 15 लाख के नीचे हैं, हम्म, तो मार्केट इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एवर, कोई भी मार्केट उठाएगा मार्केट इज ऑलवेज फ्रैगमेंटेड, एक चंक ऑफ पाई 1 करोड़ के ऊपर होता है, छोटा सा चंक ऑफ पाई 50 लाख का होता है, बाकी सारा ऐसा नहीं कि 10 लाख के 50 लाख के बीच में होता है, बाकी सारे 10 लाख के नीचे हैं। मुझे लगता है कि द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैथ विच वाज मेरा फॉलोअर्स का सबसेट होगा व्यूज और मेरा व्यूज का सबसेट होगा पैसा, इज चेंजिंग, हैव बीन चेंजिंग एंड विल चेंज। Like example, uh, when I was at 30K followers on Insta, I was still making a 1 lakh money every month. Now ये मैथ अगर कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग मॉडल में बैठा होगा नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे मॉडल ये है कि जब तक आप महीने का 1 लाख व्यूज नहीं करते हो आप ब्रांड से 70,000 60,000 चार्ज नहीं कर सकते, और अगर आप 2 ब्रांड डील्स नहीं करोगे 1.4 नहीं होगा महीने का। बट वट माई सजेशन इज पॉइंट नंबर 1 ये और खराब होगा, 8% स्टिल मेरे को लगता है ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, मेरे हिसाब से 5% 3% का आएगा। उसका रीजन ये है एनी मार्केट दैट हैज बीन कमोडिटाइज्ड उसका एवरेज प्राइस पॉइंट गिरता है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। प्रोडक्शन कंपनीज एक टाइम पे चार्ज करते थे हेफ्टी अमाउंट, वो गिर के गिरा है। अभी एआई के वर्ल्ड में लेफ्ट राइट सेंटर यूजीसी प्रोडक्शन लोग 5,000 में देते हैं, 10 में देते हैं, 15 में देते हैं, हर प्राइस पॉइंट पे है। सो मार्केट का एवरेज रेट कब का गिर चुका है, लाइक एड 5 साल पहले किसी भी पूछोगे 1 लाख के नीचे पर एड एसेट कोई बात नहीं करता था। आज के रेट में 40,000 50,000 में लोग एड्स बनाने के लिए रेडी, 30 सेकंड एड प्रोडक्शन कंपनीज। Now, since you know that content creation has become easier, Instagram का free tool है edit से आप, there is your captions.ai जो साल का शायद 5,000 चार्ज करता है या क्या, सबटाइटल खाली करने का और AI zoom in करने का। So the cost of content production has gone down and its barriers to entry is low and more creators are coming up. आप इस रेस में जीत नहीं सकते विदाउट बीइंग एक्सेप्शनली, मतलब आपका करियर अगर ऐसा कुछ बहुत ही सेक्सी और इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग निकल के आएगा। लाइक यू आर अ मैथमेटिशियन फैमिली में बॉर्न, यू आर अ मार्केटर ट्राइंग टू प्ले पैरा ओलंपिक्स, निकलेगा एक बढ़िया सा स्टोरी निकलेगा। हाँ ठीक है, कहीं इंडिया देश के कोई कोने में बॉर्न हो, जस्ट अनदर मार्केटर, कुछ कुछ खास नहीं निकलेगा इवन इफ यू मेक द बेस्ट एआई आउट ऑफ इट। इन दिस केस माय पर्सपेक्टिव इज स्टार्ट लुकिंग फॉर other forms of content creation. That is part 1. Part 2, definitely start monetizing your craft as a service. I'm a very big believer of that. कोई 5,000 वाला क्रिएटर डेफिनेटली ब्रांड से चार्ज नहीं कर सकता पैसा, उसको बार्टर में करना पड़ेगा।
बट कोई 5,000 वाला क्रिएटर अगर उसको लिखना आता है, वो फ्रीलांसिंग तो कर सकता है 20,000 में, 15,000 में, 25,000 में, कहीं पे नौकरी तो कर सकता है। आई थिंक ये जो थॉट है ना कि कंटेंट क्रिएशन अलग चीज़ है और जॉब करना अलग चीज़ है, ये बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट है कि जॉब छोड़ के ही क्रिएशन होगा। मेरा तो मानना उल्टा है। लाइक आई हैव बीन डूइंग लिंक्डइन एज़ अ क्रिएटर, लाइक I have two avatars. One is as a creator. I have three actually. One is as a creator. One is as a teacher. One is as a business person. I have been doing a job for quite some time now. 12 साल हो गए अभी now running a business. My longevity, my brain, my contribution towards being original and original thought is only because I do work. उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं लिंक्डइन लिख रहा हूँ 2018 से, अभी तक बर्नआउट नहीं हुआ और अभी तक मेरे को पैसे आते हैं। देयर आर बैड टाइम्स, देयर आर गुड टाइम्स। नाउ उसका कोर रीजन सिर्फ यही है कि मैंने सब कुछ छोड़ के लिंक्डइन नहीं किया। मैंने कहा मैं जॉब करूँगा, जॉब कर कहानियाँ कहाँ से निकालोगे? लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग एज एन एआई इंजीनियर, लेट्स से 4-5 लोगों ने कुछ बोला ऑफिस में, तो कुछ आइडिया आया, तो रात को कुछ निकलेगा। घर पे बैठ के थोड़ी दिन भर खाली रील देख लो तो आइडियाज निकल आएगा वहाँ पे। सो आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ these two should be merged. Make money by doing something that is a craft in the content. Like कोई अगर अच्छा एडिटर है and the person is running an editing channel of his or her own, can run an editing agency later, can start a freelancing. वो दोनों world are combined. If you are a creator who you feel that मेरे को scripting मस्त मैं करती या करता हूँ, join a company as a script writer or as a freelancer or as a gig worker, doesn't matter. Make money from them so that mentally you are detached कि मेरा कंटेंट ही पैसा बनाएगा, तभी आप लंबा वाला गेम खेल सकते हो। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, रेस्ट एवरीथिंग पीपल विल फिगर इट आउट। आई बिलीव कंटेंट क्रिएशन इज लाइक मैं जब राज के साथ काम करता था पहले, सो राज मुझे एक टाइम पे रात को हम लोग बात कर रहे थे, ही मेंशन अ वर्ड कॉल्ड आई एम एन एथलीट, आई डोंट थिंक आई एम अ क्रिएटर। As an athlete, I am competitive. I have to run faster. I have to every day practice the skill of journalistic principle, research, team building. कैसे और बेटर पूछूं, डैडी ऑफ अ सीईओ क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई रशियन क्रिएटर है क्या? सो मेरा परव्यू वर्ल्ड वाइड है। सो हाउ मच ऑफ वाटर शुड आई ड्रिंक? लाइक अच्छे सिंगर्स अपना गला ठीक करते हैं, दे ड्रिंक अ सर्टेन थिंग, दे विल नॉट ड्रिंक अ सर्टेन थिंग बिकॉज ये उनका रोजी रोटी है। जब तक उस माइंडसेट पे नहीं उतरते हो, यू कैनॉट मेक इट। हिलते डुलते ये करके आ जाओगे, डजंट मैटर। लाइक मेरा मेरा कमाई आता है ब्रेन से। सो आई मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन ऑन कंटेंट इज ब्रेन फूड, ब्रेन एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। आई एम नॉट अ मॉडल, सो आई एम नॉट, मेरा फेस इज नॉट अ नॉट अ पीस टू इन्वेस्ट। मॉडल्स इन्वेस्ट दे। सो ये करके इस माइंडसेट में अगर बिल्डअप करोगे देन यू कैन डू, अदरवाइज विल बी स्क्रूड अप। जिस लेवल पे वी आर सीइंग मोर क्रिएटर्स, या इट विल क्लीन आउट अ लॉट ऑफ पीपल। What do you think कि क्या differentiate कर रहा है ये बड़े मतलब Raj Shamani mentioned the athlete mindset. You also work with finance with Sharon. So you work with big, like you work in Filter Coffee, Dice Media. What difference you see that what is working? Like what used to work earlier and how it is changing over the time? Yeah, so मैं a lot of my credit actually goes to the first startup that we will build in. It was a social networking app. Now, since I have built a social network, I know how an algorithm is built. लॉजिक क्या होता है? जो लोग बोलते हैं ना कि वो एल्गो समझियो, एल्गो क्रैक कर लो, एल्गो क्रैक कर लो, उसका ना जेन्युइन मतलब है, जो लोग भूल जाते हैं। उसका जेन्युइन मतलब क्या है? एक सिंपल सा कहानी है, वो सिंपल लगेगा आपको, बट अगर आप जेन्युइनली इसको पूरा व्हाट डू आई से इंटरनाइज कर लेते हो, बहुत कुछ अच्छा निकल के आएगा। और वो इंटरनेशनल क्या है? एल्गो इज लाइक अ बच्चा। वीडियो जब आप अपलोड करते हो, आप बच्चे से बात नहीं करते हो कि भाई मैंने इस टाइप का वीडियो अपलोड किया है, इस टाइप का ऑडियंस ढूंढ। बच्चा ट्रेंड ऐसा है कि बच्चा वीडियो को रीड करेगा और उसको जो मन मर्जी आएगा वो उसको दिखाएगा। सो व्हेन आई नो बच्चा रीड क्या करेगा, इफ आई नो क्या बच्चा रीड ऑडियो कर सकता है या बच्चा रीड वीडियो कर सकता है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको निकल के आएगा बच्चा रीड फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कर सकता। आपको लगता है 5 घंटे का अपलोड कर दो यूट्यूब में, तो यूट्यूब बैठ के 5 घंटा बैठ के सुना पूरा कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। सो देन यू विल हैव अ रियलाइजेशन, ओ बच्चा
अगर मैं सिर्फ अपलोड कर तो समझ नहीं पाएगा. आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा सिग्नल्स टू द किड. तो देन आता है कैप्शंस, ऑल्ट टेक्स्ट, फाइल नेम, वीडियो फाइल की नेमिंग. ये सारे चीजें हैं जो एसईओ एक्सपर्ट्स अपने टाइम में बना के छोड़ दिए हैं. आप उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं. और एक ये रहता है, ओ अच्छा बच्चा पूरा वीडियो नहीं कह सकता, बट बच्चा 20 सेकंड पढ़े आके ट्राई रे देखते हैं, तो पहला 20 सेकंड पे सिर्फ वही वाला टेक्स्ट लगाओगे जो चाहते हो आपका कोहॉर्ट है. मीनिंग सपोज इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो विच इज मेंट फॉर only MBA students, I will put a text on top in the intro slide which says top 5 books for MBA students. My caption will be that. जब मैं वीडियो फाइल अपलोड कर रहा हूँ मैं आई विल रीनेम माई वीडियो फाइल टुवर्ड्स दैट सो दैट आई कीप एवरीथिंग रेडी कि वो बच्चा समझ जाए. वीडियो जाएगा, वीडियो अपलोड हुआ, आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ द फर्स्ट 1 आवर में मेरा रेट कितना होता है, व्यूज का रेट कितना होता है फर्स्ट 1 आवर फर्स्ट 1 आवर पे. पूरा सोशल मीडिया रिसेंसी पे चलता है. 4 घंटे में वीडियो चला नहीं चला पिट गया. यू कैनॉट रिकवर वीडियो आफ्टर दैट unless and until you are creating something that I call as a search based video on YouTube, which is how to run YouTube ads, how to run Google ads. ये forever content. लोग खुद आके सर्च कर लोग खुद आके सर्च करते हैं. वो करते हो तो फिर अलग था. आपने डाला, आपको पता है कि 1 आवर का स्पाइक देना है, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेज कि उसने एम्पलीफाई कैसा करना है. शुड यू पुट इन योर कम्युनिटी, शुड यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ रील, पुट इट ऑन योर स्टोरी एंड से गाइस मैंने इस वीडियो में ये ब्रेक डाउन किया है, गो चेक इट. आपको जो पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट पे बताओ, डिबेट करते हैं. यू ट्राई टू हैप इट अप वर्सेस सेइंग देख ली, गो ऑन वॉच इट या डायरेक्ट अपलोड कर लो. सो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि इसी को ही एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग कहते हैं और कुछ नहीं. एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कि दिन में 5 बार कंटेंट डालने का एल्गोरिथम काम करेगा या ट्रेंडिंग रोल ऑडियो लगाने पे एल्गोरिथम काम करेगा. दैट इज जस्ट फैफ बिकॉज वो सबको क्विक हैक्स चाहिए ना, बिकॉज वो होता है. यही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अगर काम करोगे तो सब कुछ जायज है, सब कुछ निकलेगा. All the top creators that I have noticed are not the best when it comes to distribution planning. That is why there is an existence of people like me. There are very few people who understand distribution, but there is some existence. इस पार्ट को छोड़ के जो core understanding है, which is supreme level discipline, supreme level कि 3 बार कंटेंट जाएगा एक हफ्ते में तो जाएगा. एंड सुप्रीम लेवल SOP एडिशन में लाइक ऑल द टॉप लोगों का मैंने एक ऑटोमेशन सिस्टम देखा हुआ है. लेट्स से दे हैव टू डू गेस्ट रीच आउट्स, 50 गेस्ट रीच आउट्स विल बी डन. गेस्ट रीच आउट का ईमेल विल गो इनटू अ डेटाबेस. वो डेटाबेस को कोई एक इंटर बैठ के देख रहा होगा, उसको टारगेट दिया गया है डेटाबेस से फर्स्ट कॉल का कन्वर्जन होना चाहिए 5%. फर्स्ट कॉल कोई पर्सन करेगा, वो उसको ब्रीफ देगा. तो ये जो SOP डिजाइन ये ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स का है, ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स का. दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट दैट सेपरेट्स देम आउट. नंबर 2 इज डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द आउटपुट हेल्प्स देम टू इंक्रीज वॉल्यूम. कि अगर मैं 5 कंटेंट से लगाव रखूंगा तो मैं 5 कंटेंट से एक्सपेक्ट करूंगा 20,000. मैं अगर 100 कंटेंट करूंगा तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा देखने के लिए. सो डिटैचिंग देमसेल्व्स दे आर एबल टू इंक्रीज द आउटपुट. दैट इज पार्ट 2. पार्ट 3 टीम बिल्डिंग, और ये लास्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा क्रुशियल है. आई हैव सीन 2 काइंड ऑफ क्रिएटर्स, वन इन ऑल कि मेरे को सब कुछ पता है, आउटसोर्स करना मुश्किल है, मेरा समझ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो पकड़ के रखते हैं. एंड देन देयर आर क्रिएटर्स जो बहुत खुले हैं. इंट्रो कोई और एडिट कर रहा है, कलर ग्रेड कोई और कर रहा है, दे हैव जस्ट बांट दिए पूरा. या सो आई हैव सीन दे आर एबल टू विन because then the creator is only focusing on the craft, which is topic ढूंढो, खुद लिखो स्क्रिप्ट को और कड़क लिखो. That's it. So ये 3 major differentiators हैं. Rest everything is not in your control. आप दिखते कैसे हो, not in your control. आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास पैसे कितने हैं डिप्लॉय करने के लिए, फॉर दैट यू कैन हायर योर टीम. आपका बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन कैसा है, मतलब यू आर फ्रॉम आपने संस्कृत की पढ़ाई की थी एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक वेल, सो यू विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्रिएटर जो 5-6 संस्कृत के श्लोक फेंक देगा तो वायरल चले जाएंगे.
those are not in anyone's control. So those are unfair advantage. I will not talk about that. But essentially यही चीज है जो सब लोग चाहे तो कर सकते हैं. ओके, आपने बहुत अच्छा ब्रेकडाउन बताया थी एल्गोरिदम को किस तरीके से एनालाइज करना है, बट ओवर द टाइम जैसे मैंने पूछा कि ओवर द टाइम क्या चेंज हो रहा है एल्गोरिदम में भी, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि रॉ कंटेंट तो बहुत ज्यादा चल रही है, तो मुझे ये समझना है, ऑडियंस को भी ये हाँ, समझना है कि so- रॉ कंटेंट Correct, you are asking that. जो मैंने बोला अल्लू का ना, वो तब भी जायज था, अब भी जायज है. It has not changed at all. There are two frameworks of algo that layman language में समझना चाहिए. You are a better one, well qualified person for understanding the backend. मेरे को बैकएंड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीदर यू कैन प्रेडिक्ट कि ओके इंस्टा का कैसे काम करता है बैकएंड, एंड द आइडिया इज दे हैव बिल्ट अ मॉडल जो कभी प्रेडिक्ट हो ही नहीं सकता, नहीं तो कोई भी गेम कर लेगा. बट मैं लोगों को फर्स्ट रखता हूँ एट द पोर कि ओके ठीक है, इंजन डम चीज है, इंजन ऐसे ऐसे करता होगा. आज के डेट में इंजन पूरा का पूरा वीडियो रीड नहीं कर सकता, कल को अगर रीड कर देगा तो फिर कैप्शन भी देने की जरूरत नहीं है, टैग्स भी देने की जरूरत नहीं है, सब कर लेगा. फॉर एन एग्जाम्पल टिकटॉक, टिकटॉक को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वाई दे खुद ढूंढ लेगा वहां पे. ट्राइल्स इज दैट, ट्राइस इज द वन ऑफ द वर्जन ऑफ दैट कि कुछ भी ना लिखो, खुद खुद कुछ ढूंढ लेगा. बट उसको आउट रख के आफ्टर यू आर हैव सम क्लैरिटी अबाउट दैट, नाउ कम टू द बेसिक्स. हर 6 साल में द कोर मेट्रिक दैट द प्लेटफॉर्म इज चेजिंग, आई हैव नोटिस, चेंज होता है. कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आपका खुद का कोर केपीआई होगा, पीपल टाइम स्पेंड ऑन द ऐप इटसेल्फ, रिटेंशन रेट. The only difference is the major KPIs and the matrices have gotten added. Like for an example, saves as a metric on Instagram. ड्यूरिंग माई फिल्टर कॉपी डेज उतना बड़ा कंपोनेंट नहीं था, शेयर्स था हमेशा. तब लाइक्स और कमेंट्स को बहुत प्रायोरिटी दिया जा रहा था कि अगर आपके शेयर्स नहीं है चलेगा, बट लाइक्स और कमेंट्स बहुत होने पड़ेंगे, एल्गो पुश करता है. अभी वो सारी चीज़ें बदल गई हैं विद टाइम. करोजल्स ऊपर नीचे होता रहता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है. ऑल्सो इट इज़ जोग्राफी बेस्ड एज वेल. इंडिया में कुछ पैटर्न चलता है, नहीं चलता है. बट आई थिंक व्हाट हैज मेजरली चेंज इज, अभी एक नया वेव है विच इज हर 5-5 महीने के साइकिल में एक एक फॉर्मेट चलता है. तब इतना वोलेटाइल नहीं था. आई थिंक तब इसलिए इतना वोलेटाइल नहीं था यार. फिल्टर कॉपी ऑलमोस्ट सिमिलर स्किट फॉर्मेट. फिल्टर कॉपी, भड़िप्पा, स्कूप, टाइमलाइनर्स, ये सारे सिमिलर स्टाइल ऑफ स्किट्स 5 साल चलाए हैं. सारे सिमिलर स्टाइल ऑफ स्किट्स, रिलेटेबल कॉमेडी जिसको बोलते हैं. वरना गुजराती डेट्स आर दिस गाय, शॉर्ट्स एकदम शॉर्ट्स वाले. अभी उतना लंबा साइकिल नहीं है. अभी आप 6 महीने चलाओ, उसके बाद मार्केट कुछ और मांगता है जाके. सो अभी द साइकिल्स हैव चेंज्ड बिकॉज कंटेंट फटीग इज मोर. देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स डूइंग द सेम थिंग, एंड हेंस द वोलेटिलिटी इज एक्सट्रीमली हाई. सो हेंस यू हैव टू कीप ऑन रीइन्वेंटिंग. सो अभी कुछ भी ऊपर नीचे होता है. सो अभी एडिटिंग फॉर्मेट में अगर आप एक सर्टेन टेक्स्ट लगाते हो, स्टाइल ऑफ फॉन्ट वो चेंज हो जाता है हर 6 महीने बाद कि अब एक अलग टाइप of फॉन्ट लगानी पड़ेगी. यू आर मेंशनिंग अबाउट the raw reel. Raw content was always a format on YouTube. There are certain categories जहाँ पे सीधा कैमरा पे देख के लंबा लंबा बात करो, वो चलता था. इंस्टाग्राम पे अभी वो चलना चालू हो गया है. इंस्टाग्राम पे बीच बीच में लॉन्ग फॉर्मेट्स भी चलते हैं, लैंडस्केप में शूट करो, वो भी चलता है. लाइक आई हैव टेस्टेड रिसेंटली ऑन सम ऑफ माय ट्रायल रील्स, माय लैंडस्केप वीडियोस एंड माय हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल वीडियोस में मुझे कोई डिफरेंस इन व्यूज नहीं दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी 6 मंथ. सो ऐसा नहीं है कि रॉ भी लंबा टिकने वाला है. अभी रॉ अगर सब लोग करने लगेंगे फिर कुछ और आ जाएगा. आई थिंक इट्स जस्ट content fatigue in my opinion. When a certain format is commoditized, so for an example the split screen format जो वरुण माया करता है बेसिकली, हाफ में स्प्लिट स्क्रीन चल रहा होगा, ऊपर बी रोल चल रहा होगा, उसको इतने लोगों ने किया है, मे बी 6 महीने बाद वो भी खत्म हो जाए, कुछ और आ जाए. Okay. So that has just kept on changing. So now the creator is forced to identify what are the new trends in editing styles, what are the new trends in hook styles. Reverse psychology hooks पहले नहीं करते थे लोग. लोग बिल्डअप करते थे कहानियों में. As in लास्ट महीना मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे गया था, वहाँ पे मेरे को ये इंसान मिला, वो इंसान ने मुझे ये बोला, तो मैं आपके पास आ गया हूँ एक फॉर्मूला लेके, इस वीडियो में मैं बात करूंगा फॉर्मूला लेके. अभी इतना लंबा हुक कोई नहीं सुनता है. अभी डायरेक्ट हुक पे ये करते हैं. 3 सेकंड से आपके पास सिर्फ एग्जैक्टली.
अगर आपके पास ये प्लेबुक अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हुए हो खाली फोकट, तो ये हुक देखो. So that has changed. So the creator is now forced to keep on being updated on the trends on hooks क्या है, edits क्या है, color grade क्या है, outdoor चलता है या indoor चलता है. So ये सारे patterns has now become more volatile right now. सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक क्रिएटर हूँ बैंगलोर में, अज्यूम कर लेते हैं एज है 25 to 30 के बीच में, एंड इफ आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, सो व्हाट क्वेश्चंस आई शुड आस्क टू माय सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग एनी? Good. So I'll tell you, I do this exercise whenever anyone books any of the session with me. I ask 3 questions और मैं वो 3 question कहता हूँ. Number 1 is, if I spend 2 hours of my very precious life with you, over a cup of coffee, over a cup of whatever drink that you like, and after end of the 2 hours, I have one exercise. I mandatorily have to call you after 1 week. I have to just call you. Give me 2 reasons. Number 1, why should I call you? दिमाग में ऐसा क्या ट्रिगर आएगा कि ओके इसको इसके लिए कॉल करते हैं. नंबर 2, अगर मैं कॉल करूँगा तो क्या बात करेंगे. ठीक है. This is a very solid self introspection exercise that will force you to think कि you will call me before Sindhu, if you are bored you will call me, and then I'll be like बेकार आंसर है, ऐसा नहीं है. If I'm bored I can call anyone. Why will I call you? Then और खुलता है दिमाग. हाँ, you will call me because अगर आप बोर्ड हो और आपको किसी से ज्योग्राफी के बारे में बात करना है जो फनी भी है, तब आप कॉल करोगे. Then now we have started talking कि अच्छा ठीक है. Is your assumption कि मेरे कॉल लिस्ट में ज्योग्राफी के सारे लोग नहीं है? तो then she will start or he will start thinking more कि हाँ ज्योग्राफी के लोग होंगे, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ समवन, ज्योग्राफी वाला क्रिएटर हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकता है, कर सकती है, फनी है, मजाकिया है, रिलेटेबल चीज़ों के बारे में बात कर सकती है, इज मिसिंग. ये चीज़ लिख ले अभी, तूने जो बोला हुआ है. यू आर वेरी वेरी क्लियर कि मैं तेरे को क्यों कॉल बैक करूंगा. नाउ जब हम कॉल पे बात करेंगे, कितना लंबा बात करेंगे, किस चीज़ पे बात करेंगे, एंड देन आई स्टार्ट ग्रिलिंग देम कि ओके व्हाट इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी. फिर सामने वाला बोलता है I will try my best to make geography fun for you so that you listen to me. So यहीं से आपका पैटर्न निकल के आ जाता है in this case. The reason you cannot do this exercise just by yourself, because it is a fact, और ये psychology का principle है. Humans, okay. The first fact that you have not been able to start the content is because you have a lot of complexities within you. नहीं तो चालू कर लिए होते 2 सेकंड में, और मेरे पास सवाल कुछ और आ रहा होता. सिंधु मैंने 30 कंटेंट पोस्ट किए हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा which kind of content is working, can you please tell me. सवाल कुछ और आ रहा होता. Now since there is a blocker, the blocker is in a self introspection, and the blockers generally are oh what if this content is not good, oh what if I don't have a point of view in this, self doubt. और ये खुद से ही पूछ रहे हो. इसमें ये सर्कल में you definitely need a therapist or a counselor or an external intervention to just pull you out and start giving you a reality check for you to do it. That is point number 1 का question. Point number 2 question, if tomorrow you do geography, you build your Instagram page, why are you doing it? Are you doing it so that generally मैंने देखा है लोगों के 3 ही reasons होते हैं. I want to have freedom from income source. मेरे को passive income चाहिए. I want to have freedom कि मेरे को कोई job के लिए dependent LinkedIn पे ना होना पड़े कि every time I lose a job I just have to go to LinkedIn. I need the power कि मैं कल को reel डाल दूँ, मैं job ढूंढ रही हूँ, कोई मेरे पास आ जाएगा. So which is personal branding. और number 3, लोगों को कुछ ना कुछ business बनाना होता है. वो बिजनेस कोई भी फॉर्म में हो सकता है, either an edtech or a course or a product or a agency or a business, whatever. इन तीनों के रीजंस के अलावा जनरली कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर इज अ फोर्थ रीजन, बट मेरे पास वो लोग नहीं आते हैं, विच इज मुझे बस फेमस होना है फॉर द सेक ऑफ इट, दैट्स इट. ठीक है. बहुत ज्यादा लोग इसमें भी है, बट द प्रॉब्लम इज इन लोगों को मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज आई कैनॉट गिव देम अ डायरेक्शन. इफ यू वांट टू बिकम फेमस फॉर द सेक ऑफ इट, you probably just should do it. Once you become quote unquote famous, सबका अलग अलग होता है. Then आपको there will be a time when you will be feeling lost कि मैं famous किस reason के लिए हूँ, and then maybe you will do some introspection and then I might make some sense to you. बट जनरली ये 3 चीज़ों का टेरिटरी में होता है, एंड इसी में ही पूरा का पूरा इंट्रो का क्रिएटर. ये 3 सवाल अगर आप खुद से ही पूछ के निकाल लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये 3 सवाल को लिखो.
जितना लिखोगे उतना उतना बेटर निकल के आएगा कि व्हाट इज द रीजन यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन एज वेल. Is it just to become famous? Is it just to build a passive income? Or is it just to become your launch a business and all? ओके जब लास्ट वाला पार्ट करोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा. बिजनेस लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, अगले साल लॉन्च करना है, तो दैट मीन्स 1 ईयर का टाइमलाइन है. 1 ईयर का टाइम विंडो है तो बिजनेस किस चीज़ में लॉन्च करोगे? जिस चीज़ में लॉन्च करोगे दिस हैज़ टू बी इन सिंक. योर creator identity cannot be disassociated with something that you will be launching in the future. रिवर्स इंजीनियरिंग वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. सो अगर कुछ भी बना रहे हो विथ अ गोल दैट हैज टू बी रिवर्स इंजीनियर. अगर इफ यू आर गोइंग द फर्स्ट पॉइंट कि यू आर नॉट रिवर्स इंजीनियरिंग समथिंग दैट यू आर बिल्डिंग बट यू आर बिल्डिंग फॉर द पैसिव इनकम और यू आर बिल्डिंग फॉर द जॉब्स एंड ऑल, देन इट्स सिंपल. आपकी जॉब की आइडेंटिटी इफ यू आर हैविंग फन डू इट हियर. यहाँ पे जब ये सब कर रहे होगे और ये सारा आंसर निकल आएगा उसके बाद आएगा फॉर्मेट कि विच फॉर्मेट डू आई डू. सो आई call format into two parts. There is a format that can go viral. There is a format that can generate trust. Essentially, दोनों एक साथ बैठते नहीं है generally. True. So you will have to take a call. At this point of time, when we were mentioning about कि okay 2030 तक 8% मान लेते हैं 3% आ जाएगा. I see a world where people will start believing more in micro cohorts. Not 1 million चाहिए 1 million चाहिए. Okay. A creator with a 30K follower, where the following is from people, let's say AI, AI engineer, job AI engineer का है, कोर्स लॉन्च करने हैं AI इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए और वट एवर आई एम यूजिंग लैक ऑफ बेटर वर्ड्स. जो भी मैं कंटेंट उसके राउंड पे बना रही हूँ या बना रहा हूँ, मैं स्पीकिंग सेशन उसके राउंड पे दूंगा, मैं एक बुक लिखूंगा उसके राउंड पे, 30K फॉलोवर तक चलेगा. पर वीडियो पे मुझे व्यूज चाहिए 5000. वो 5000 व्यूज को मैं कन्वर्ट करूंगी व्हाट्सएप पे 500 लोगों को. इससे ब्यूटीफुल फनल नहीं हो सकता. एंड यू विल जनरली सी दीज पीपल विल मेक बेटर मनी देन 1 मिलियन क्रिएटर एंड मेकिंग ओनली मनी फ्रॉम द ब्रांड डील्स जस्ट बाय फैशन क्रिएटर एंड ऑल, क्योंकि उनका स्पाइक्स पे चलता है. वो नवंबर दिसंबर आएगा अमेजॉन स्पाइक डे सेल, वो पूरा जाएगा 5 लाख की कमाई, उसके बाद सीधा डिप आएगा 2-3 महीना, फिर उसके बाद सीधा अपवर्ड्स जाएगा. सीजनल है. फिर कल को अगर 10-15 और क्रिएटर्स मार्केट में आ गए फैशन करना, बिकॉज दैट इज इजी. एनीथिंग दैट इज हार्ड यू विल हैव गुड बैरियर टू एंट्री. लाइक आई बिलीव, मेरा बिलीव ये है नेक्स्ट 5 साल is not the era of creators of large creators. It is the era of microbiologists, nanotechnologists, agriculture people, cameramen. As simple as कोई अगर like imagine you don't see a big account of Foley artists, sound, ये साउंड को रिकॉर्ड करने वाले तो साउंड में इसको फोले आर्टिस्ट कहते हैं. कोई इसको अगर एक आईपी बनाता है, बॉम्बे का कोई साउंड टेक्नीशियन कमाता होगा लेट्स से 1 लाख बनाता है, आराम से 1 मिलियन क्लॉक करेगा, आराम से क्लॉक करेगा. उसको किस टाइप के ब्रांड डील्स आएंगे? साउंड के ब्रांड डील्स आएंगे, सेनेजर का ब्रांड डील आएगा, अडोबी का ब्रांड डील आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो पर्सनालिटी बेस्ड बता रहा है. गाइज आपको पता है ईडीएम का जो साइन कर्व होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि सो इतना ज्यादा ओपन टेरिटरीज है, इतना ज्यादा ये सब में ओपन टेरिटरी है कि बहुत कुछ बन सकता है इसमें. सो आई थिंक द नेक्स्ट 5 years विल बी एन एरा ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पीपल ट्राइंग टू मेक इंफोटेनमेंट बेस्ड कंटेंट क्रिएटर. अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 मंथ से अकाउंट्स रैपिडली ग्रो हो रहे हैं. वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ऑर्गेनिकली हो रहा है सब कुछ पूरा इंडिपेंडेंटली, या ऑर्गेनिक प्लस एड्स बूस्टिंग विल वर्क? किस तरीके से काम करेगा? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट जनरली लोगों का अकाउंट ग्रो हो रहा है या कोई स्पेसिफिक? नहीं, जनरली मैं देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ कि लोगों का अकाउंट बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है और 100K तक जाएगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाएगा. बस मैं काफी नहीं तो वो 100K वाला मार्क का नो, मतलब आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एविडेंस, उसको छोड़ देते हैं. सो जनरली इंस्टाग्राम ऐसे भी अभी पुश कर रहा है. इंस्टाग्राम थोड़ा अभी लाइक इफ यू गो टू द व्यू इनसाइट्स टैब, वहां पे दिखता है कितने फॉलोअर्स को गया, कितने नॉन फॉलोअर्स को गया. इट इज अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न दैट इज बीइंग विजिबल कि नॉन फॉलोअर्स को ज्यादा वो पुश कर रहा है सबका. दैट इज पॉइंट 1. पॉइंट 2 ऑन द एड्स वाला फ्रंट, मेजॉरिटी लास्ट
12 साल से मेरे को सेम क्वेश्चन हर साल कोई ब्रांड कोई ये पूछता रहता है। रेडिट में अगर आप जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको हर जगह मिलेगा एड स्किल द प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल। आई विल नॉट नेम। जितने भी क्रिएटर्स मैंने काम किया हुआ है, जितने भी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, उनका मैंने ये सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, जिस पे कोई ऑर्गेनिक हैम्पर नहीं हुआ है किसी का भी। ना उसका मीनिंग क्या है? एड चलाना इज एन आर्ट, इट इज अ प्ले बुक। उसको मैंने बनाया हुआ है दैट मिमिक्स द ऑर्गेनिक एल्गोरिदम, इसलिए वो हैम्पर नहीं होता है। इसे रैंडमली बैठ के बूस्ट करोगे हैम्पर होता है। सिंपल सा फ्रेम हो, क्यों हैम्पर होता है मैं बोल लेता हूँ और क्यों नहीं हो सकता। अगर आपका एड 10,000 व्यू लेके आता है, वो व्यूज टू शेयर्स रेशियो इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर ऑर्गेनिक। लेट्स से 10,000 व्यू में 100 शेयर्स आ रहे थे ऑर्गेनिक पे, एड्स में 10,000 का व्यू का बूस्ट किया, एक शेयर आया, तभी वो नेगेटिवली हैम्पर होता है। तो 10,000 व्यू आपने रैंडम लोगों को दिखाया होगा। एड्स इज अ स्पेशलिस्ट का जॉब। लोग 12-12 साल 15-15 साल काम करते हैं। कोई क्रिएटर रैंडमली जितना भी तीसमार खान का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर्सन ले आए, वो नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, the person who runs performance marketing for selling a product is not the person who can push a content। दोनों अलग अलग आर्ट फॉर्म है, दोनों अलग अलग प्लेबुक है। जब मैं फिल्म मार्केटिंग करता हूँ, इट इज नॉट द प्लेबुक ऑफ D2C ब्रांड को प्रमोट करना। वहां पे मेटा एड्स कन्वर्जन वाले लॉजिक नहीं चलते हैं। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जस्ट टू टेल यू कि यस इट हैम्पर्स, बट इट हैम्पर्स अगर जो बंदा कर रहा है या जो भी कर रहा है उसको पता नहीं है करना कैसे होता है, एंड मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है। उसके लिए मेरा फुल बिजनेस यूनिट इसी का है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स वी वर्क विथ कम फॉर दिस रीजन कि ओके वी वांट यू टू बिल्ड द प्लेबुक फॉर YouTube, Instagram, content promotions and all stuff. This is the long story short. What do you also think about the distribution platform? Like, for example, we have different like X, LinkedIn. Threads, LinkedIn, yeah. So, abhi I have seen ki people are focused on Instagram. If they succeed on Instagram, they are going for YouTube. So, what do you think about this? मेरे को वो सेंस नहीं लगता, Hmm. मेरे को सेंस नहीं लगता। आई थिंक दैट वाज ट्रू when you were not having AI tools like Perplexity and all. The least you can do is upload on Instagram, go to a transcription tool, transcribe your script, take the script, go to a Perplexity, ask it to convert that into a Twitter thread. ट्विटर पे थ्रेड पे जाके पोस्ट कर लो, जिसका एंड में होगा अगर आपको वीडियो फॉर्म में चाहिए ये है लिंक। बहुत इजी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आज के डेट में। You should have the multiple distribution channels. हाँ मतलब वाई शुडंट आई नॉट, मतलब वहां पे अगर मुझे 500 इंप्रेशन मिल रहा है एटलीस्ट, इट्स एन एक्स्ट्रा एड ऑन। लाइक वी वर हैविंग दिस चैट बिहाइंड द स्क्रीन राइट, कि द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट मेरा एक कंटेंट है एंड लुक लाइक अ बिजनेस। मैंने ये कंटेंट को क्रिएट करने के लिए 10 घंटा दिया और इस पे मेरे खर्चा हुआ 10,000 रुपए। मैं इस 10,000 को मैक्स आउट करना चाहती हूँ। जब वो माइंडसेट में उतरोगे तो वो मैक्स आउट वाला भी चीज निकलेगा। ओ अच्छा, इंस्टाग्राम मेरे को देता है 2,000, लिंक्डइन पे मुझे मिलेगा 3,000, ट्विटर में मुझे मिल जाएगा 500। मैंने ऑलरेडी पैसे का रिकवरी कर लिया, अदरवाइज वो नहीं होता है। True. So, what kind of systems you have built for yourself, and what kind of systems like every creator should think of? Like, I should have this channels or this proper systems. Content distribution systems या creation system? Both you can mention. So let's do pre-upload, post-upload. So my all accounts are like experimental accounts. I do a bunch of tests, then I test these things with my creators who I work with or my brands who I work with. I see it is working for one, then I do another one, then I see it is working for one, then I do another one. Only if it works, then मैं इसको मेरा टीचिंग अवतार में लेके जाता हूँ कि anyone I'm teaching तभी मैं recommend करूँगा। टीचिंग इज वेरी सीक्रेट टू मी। मैं एक सिंगल सेंटेंस नहीं बोलता हूँ अगर मैं एटलीस्ट 3 अकाउंट पे ट्राई नहीं किया हूँ। आई एम नॉट अ क्रिएटर जिसका एक पोस्ट चल गया और मैंने उसी को प्लेबुक बना के भेज दिया था कि कल कि अरे ये काम करता है वो काम करता है। सो अगर मैं बोलता हूँ ट्रायल रील काम करता है, only after I have posted 700 to 800 trial reels in the last 2 months. मैं 2-3 ट्रायल रील डाल के नहीं बोलूंगा कि ओके ठीक है 5 मिलियन चला गया, कर ले हो जाएगा। सो my pre-upload protocol is let me say on the shorts. Basically I use ChatGPT to understand. सो ChatGPT का मेरा प्रॉम्प्ट ये होता है कि ओके लास्ट 3 महीने में जितने भी कंटेंट वायरल गए हैं, तेरे पास जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन these topics, उसको ढूंढ के मुझे बता कि what are the most commonal occurrence that has happened again and again. Meaning क्या लास्ट 3 महीने में मेटा एड ज्यादा चला है
एज अ टॉपिक टू कवर, या गूगल ऐड चला है एज अ टॉपिक टू कवर, हम्म। वो लिख के मेरे को दे देगा 3 टॉपिक। हम्म। मेटा ऐड में फिर ढूंढ के मेरे को बता कि मेटा ऐड में क्या सबसे ज्यादा चला है, तो फिर वो मुझे दे देगा मेटा ऐड में एंड्रोमेडा अपडेट नाम का कुछ चीज है जो चला है। मेरे को एक वर्ड पता चला, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू एंड्रोमेडा अपडेट का कीवर्ड, मैं जाके गूगल में जाके टाइप करूंगा और मैं देखूंगा टॉप 5 लिस्टिंग क्या आ रही है। जो टॉप 5 लिस्टिंग आया उसको मैंने उठाया चैट जीपीटी पे चढ़ाया, फिर मैं जाऊंगा यूट्यूब पे। जो टॉप 5 लिस्टिंग आया उसको मैंने चैट जीपीटी पे चढ़ाया, फिर मैं जाऊंगा ट्विटर पे। जो टॉप 5 आया चढ़ाया, बोला सारा एक्यूमुलेट कर और मुझे एक बेसिक एक फर्स्ट ड्राफ्ट एक निकाल के मुझे दे। फिर मैं फर्स्ट ड्राफ्ट को पढ़ूंगा, फिर मैं अपने इंटेलिजेंस और अपना मुझे जितना पता है उस पर मैं देखूंगा कि मेरा इसमें टेक क्या है। And then my philosophy is I need to have a take. I do not read a script if I don't have a take at all. So for an example, let's say Andromeda update का script आया हुआ है which is Meta has built this, इसमें cognition recognition ऐसा कुछ एक algorithm है which reads out images and all. The script the algorithm is asking creators to create 50 creatives, 50 word लिखा है। आई विल लाइक नहीं, मुझे मुझे 50 से मैं राजी नहीं हूँ, आई डोंट थिंक 50 इज राइट। तो देन मैं उस पर चेंज कर देता हूँ कि ओके आई फील इफ यू आर इंडियन क्रिएटर और आपका एड स्पेंड्स अगर इस लेवल का है, आपका एड स्पेंड्स के प्रपोर्शन में इतना होना चाहिए। आप अगर 20 लाख खर्चा करते हो तो 20 क्रिएटिव करो, 1 करोड़ खर्चा करते हो तो 50 क्रिएटिव करो, 1 करोड़ के ऊपर करते हो तो 100 क्रिएटिव करो। नाउ सडनली मेरा प्लेबुक थोड़ा और एनहांस हो गया इस पे। सो आई विल जस्ट कन्वर्ट दैट, चेंज दैट, स्क्रिप्ट रेडी है, मैं स्क्रिप्ट एक बार पढ़ लिया, फिर मैं स्क्रिप्ट को डिलीट मार देता हूँ। मैं रीड नहीं करता क्योंकि मेरे को जबरदस्ती इम्प्रोव चाहिए और मुझे वो हिंदी एलिमेंट ऐड करना है। आई कैन नॉट डू दैट बाय रीडिंग आउट अ स्क्रिप्ट, सो मैं डिलीट कर देता हूँ। आई विल गो टू द शूट, आई डू इन बैचेस। सो मैं 12 स्क्रिप्ट इकट्ठा लेके जाता हूँ, एक गो में शूट करता हूँ। और मैं सो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ बैंक, मतलब मैं हर 2 दिन में 12 का बैंक रखता हूँ। वो यूज होगा नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, मेरा बैंक रेडी होना चाहिए, 100 वीडियोस रेडी हो। तो आई विल क्रिएट दैट, देन आई विल शूट इट, देन आई हैव अ एडिटिंग टीम जिसके साथ मैं काफी क्लोजली काम करता हूँ। सो माय एडिटर्स देन टेक केयर ऑफ द एडिट, फिर ड्राफ्ट्स क्लियर होंगे, ये वो फिर वो शॉर्ट जाएगा लिंक इंस्टाग्राम पे। मेरा सर्टन एक स्टाइल है कैप्शन लिखने का, आई विल अपलोड दैट शॉर्ट। आफ्टर दैट शॉर्ट इज अपलोडेड, मैं शॉर्ट का स्क्रीन ग्रैब लूंगा, स्टोरी में शेयर करूंगा, स्टोरी में ब्रेक डाउन डालूंगा, इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड दिस पूरा कैप्शन में पूरा स्टोरी में जब मैं डालूंगा हाँ 2-3 लाइन खाली डालूंगा कि आई हैव टॉक्ड अबाउट मेटा एंड्रोमेडा अपडेट ब्रेकडाउन इन दिस वीडियो, इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच द वीडियो फुल। सो उस पर टैप करने पे पूरा वीडियो पे जाता है। आई हैव अ कम्युनिटी, फिर मैं वहाँ पे ये शेयर करता हूँ। फिर इसको मैं ट्रांसक्राइब करके ट्विटर पे थ्रेड बनाता हूँ। ट्विटर थ्रेड में मैं हाफ लिखूंगा और बाकी हाफ का लिखूंगा पूरा ये वीडियो में है डाल दो। फिर मैं लिंक्डइन पे बनाऊंगा, फिर मैं लिंक्डइन पे कोई ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करता बट लिख लेता हूँ वहाँ पे। सो ये मेरा पूरा एक कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। आफ्टर दिस इज डन, मैं 3 दिन वेट करूंगा। अगर मैं देखा हर जगह चला है, फिर मैं यूट्यूब का लंबा स्क्रिप्ट लिखूंगा, तभी जाके मैं मे बी बिकॉज मैं अगर फुल टाइम क्रिएटर होता मैं यूट्यूब को सीरियसली लेता और मेरा मे बी फर्स्ट टच पॉइंट यूट्यूब होता, ना कि ऑल दीज। सिंस आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल, तो मैं यूट्यूब पे करता हूँ। आफ्टर लेट्स से दिस वर्क, फिर देन आई डू नॉट क्लोज द चैप्टर, आई विल मूव टू अदर टॉपिक्स। बट ये टॉपिक को मेरा एक अलग सा एक ड्राफ्ट है और वो ड्राफ्ट बेसिकली ऐसा है कि आई विल क्रिएट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम कंटेंट। सो मैं एक ड्राफ्ट में वो डाल देता हूँ। सो मीनिंग एंड्रोमेडा अपडेट मैंने ओवरऑल दिया, एंड्रोमेडा अपडेट फॉर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, एंड्रोमेडा अपडेट फॉर लार्ज कंपनीज, एंड्रोमेडा अपडेट इफ यू आर अ मार्केटर, एंड्रोमेडा अपडेट इफ यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटर। पर्सोना वाइज इसको मैं तोड़ के फिर अलग अलग लोगों का अलग अलग प्लेबुक, फिर देन मैं वो एंगल में उतरूंगा। फिर जब मैं वो करूंगा, then I will take a call that I want to do it on trial wheels or not. Since trial wheel is a recent update, I do the versions of it on trial wheel because my original platform will not be able to find newer personas. Trial wheel is more equipped to find newer personas. So that's how one content now is segregated into multiple personas and is able to get more. Like, can I use Andromeda update and convert that into for a creator? Example, अगर आप क्रिएटर हो, ब्रांड्स वाले ये यूज करते हैं, आपको पता नहीं होगा, बट लेट मी शेयर यू अ सीक्रेट दैट ब्रांड्स आर यूजिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड्रोमेडा अपडेट जो क्रिएटर्स नहीं करते हैं बिकॉज आप लोगों को एजेंसी ने बेचा होगा। आप ही फेस हो, आप ही मस्त फेस हो, आप ही कुछ कंटेंट बनाओ, ऐसा काम नहीं होता है। 100 कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए। सो देयर आर 3 थिंग्स यू कैन डू, क्रिएट योर एआई एवेटार बिकॉज 100 कंटेंट आप नहीं बना सकते हो, ये करो वो करो, तो ऐसा ओके दैट इज माय सिस्टम। ग्रेट।
आई थिंक इट वंस यू एस्टैब्लिश अ सिस्टम कि जैसे करना है, इट शुड नॉट टेक अ मोर टाइम ऑफ योर्स, बट you पूरा मैन्युअली प्रोसेस है तो you have to be full time. Yeah, I mean, for you to design your own system, you need to have a self introspection window every month. There is no other way you can do that. Point one. Point two, like I think you have a craft. You have a gift, which is you are an engineer. I think good product managers, engineers, analysts, people who are first principle thinkers can do it. अगर वो नहीं कर पाए ना, then ये एक अलग syndrome है. So there are people who are great at their job but खुद पे deploy नहीं कर पाएंगे. Not all people who are great financial analysts are a great financial personal advisor as well. उनको तो कोई और लगता है. That is a different syndrome. But generally my belief is people who are great analysts, first principle thinker आराम से कर सकते हैं अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विंडो बनाए और जेन्युइन बिलीव रखेंगे सिस्टम्स पे बनाएंगे. लाइक राइट नाउ सिंस मेरा ये मैनुअल हो चुका है, राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन कि इसमें से 2-3 चीजें मैं N8N पे उतार सकता हूँ क्या, टू जस्ट ऑटोमेट सम थिंग्स. मेरा अभी एक अलर्ट मैकेनिज्म है ऑफ कुछ भी चीज अगर ट्रेंड चल रही है इन दीज कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड ट्रेनिंग कर ली है, मेरे को एक अलर्ट आ जाए. सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल शीट पे आ जाता है. मैंने ऐसा भी नहीं किया कि मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, वो सभी ऑटोमेशन किया जा सकता है. आई नीड सम टाइम एंड अ गुड इंजीनियर हु वर्क विद मी, बट गूगल शीट में आ जाता है. मैं रोज उठ के देखता हूँ कि कोई आज नया टॉपिक आया है क्या भरने के लिए. सो अगर कोई वो भी नहीं कर सकता, और भी इजीएस्ट तरीका होता है. आपके फेवरेट क्रिएटर्स जो आपको लगता है कि वॉल्यूम में ऑपरेट करते हैं, गो टू देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन. एवरी टाइम दे अपडेट अ कंटेंट, पोस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा. द मोमेंट आ गया, सीधा था रिकॉर्ड करो, 1 घंटे के अंदर निकाल लो कंटेंट. उससे इजियर हैक और कुछ नहीं हो सकता. सो ट्रू ट्रू करेक्ट. Yeah. अगर मैं अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करूँ, जैसे लिंक्डइन पे अगर ग्रो करना है तो बिहाइंड द स्क्रीन यू आर मेंशनिंग सम टाइम लाइक 3 months, लाइक सो ऐसे अगर मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कुछ एक बार अगर मुझे क्रैक करना है तो कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू यू, इफ यू कैन एलाबोरेट मोर ऑन दैट. नहीं, सो उसमें भी मैं नुआंस ऐड कर देता हूँ. सो बेसिकली व्हाट आई वाज मेंशनिंग इज लिंक्डइन इज अ स्लाइटली इजी प्लेटफॉर्म. 3 से 4 महीने लगेगा टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म क्या नहीं है. उसमें भी वीडियो फॉर्मेट या टेक्स्ट वीडियो फॉर्मेट नहीं चलता है इंडिया में. नहीं चल रहा है. वीडियो फॉर्मेट इंडिया में नहीं चलता है. टेक्स्ट फॉर्मेट इज द ओनली थिंग दैट विल वर्क. टेक्स्ट प्लस इमेज इज पीडीएफ. द बेस्ट फॉर्मेट टू वर्क. पीडीएफ हो गया, जेपेग हो गया, डजंट मैटर. प्लेबुक्स कर सकते हो, सिंगल पिक्चर कर सकते हो. ट्राई एंड टेस्ट एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. ट्विटर इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट, very difficult format. हाउ लॉन्ग अ कंटेंट क्रिएटर शुड गिव टाइम टू वन लिस्ट कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एंड देन इफ इट इज नॉट वर्किंग देन मूविंग टू द नेक्स्ट. मतलब अगर कंटेंट लाइव गया, हाँ. so how long the creator should take a stress for that? नहीं नहीं तो नहीं वैसा नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, मतलब जैसे अगर मैंने 4 महीने तक इस पर्टिकुलर टाइप अच्छा, ऑफ ठीक वीडियोस ठीक डाले मैंने. ठीक है. What I was mentioning is लिंक्डइन पे मान लो 3-4 महीने लगेगा. ट्विटर पे बहुत लंबा लगता है. ट्विटर इज वेरी वाइल्ड, समझ नहीं आता है. सो आई थिंक आई एम नॉट वेल इक्विप्ड टू कमेंट अबाउट ट्विटर राइट नाउ. यूट्यूब इज अ ईयर, इंस्टाग्राम इज अ 6 month एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इंस्टाग्राम की कहानी कुछ और थी पहले, 1 साल पहले, अभी 6 month ऑफ टाइम. लाइक 3 महीने अभी आप क्रैक कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन नॉट मंथ, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट. सो इफ अ क्रिएटर इज पोस्टिंग, सो आई कॉल इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अगर 1 महीने के अंदर 30 पोस्ट कर रहे हो, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट पैटर्न्स ऑफ सक्सेस इज हायर. 1 महीने के अंदर 5 पोस्ट कर रहे हो तो 3 महीने में फिगर आउट नहीं होगा. सो all the numbers that I mentioned is provided if you are putting out content at least 20 per month. तभी ये numbers valid है. इसको जितना कम करोगे मंथ उतना डिले होता जाएगा. बट समझ में आ जाता है कि what will work, what is not working. सो इफ यू फिगर आउट कि ये नहीं चल रहा है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट द डिफरेंट थिंग्स लाइक Yeah, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट. like experiment नहीं है. So I think what you should do is right after the 3rd month, take a CSV download of your content. अगर आप एनालिस्ट नहीं हो, द easiest thing you can do is चैट जीपीटी पे चढ़ा दो, उसको बोलो जो भी कंटेंट मुझे सबसे ज़्यादा शेयर्स दिया है वो मेरे को लिस्ट करके दे. सामने रखो, नोटिस करो उसमें हुक क्या था, शूट कैसे किया था, टॉपिक क्या था, ऑल नोट्स बना के रखो. कुछ आइडियाज़ निकलेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ा दो. ये सबसे ईजिएस्ट एक्सरसाइज है टू डू. ओके. रेवेन्यू कैसे कंटेंट क्रिएटर्स रेवेन्यू मैक्सिमम, जैसे एक फराह खान ने मेंशन किया था कि उन्होंने मूवी से जितना नहीं कमाया उतना उन्होंने यूट्यूब से YouTube से सैलरी हाँ. कमा लिया. तो हाउ इज दैट नहीं, पॉसिबल? बट आई थिंक फराह इज जस्ट एग्जैगरेटिंग. exaggerating. यार कोरियोग्राफर्स एंड डायरेक्टर्स मेक ब्लडी टन ऑफ मनी. एग्जैक्टली. आई डाउट, नहीं वो इन्फ्लेटेड नंबर्स है, बट
मैं स्ट्रीम्स बता देता हूँ क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो इफ यू आर अ यूट्यूबर यू कैन डू यूट्यूब मोनेटाइजेशन, बट यूट्यूब मोनेटाइजेशन से किसी का घर नहीं चलता है. यूट्यूब मोनेटाइजेशन ओनली टेक्स केयर ऑफ योर बेसिक सैलरीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस स्टाफ एंड ऑल. देयर इज ब्रांड डील्स. ब्रांड डील्स के भी मल्टीपल पार्ट्स हैं. डेडिकेटेड वीडियो, इंटीग्रेटेड वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स, कम्युनिटी पोस्ट, स्टोरीज, ये सारे मोनेटाइज हो सकते हैं. आफ्टर मोनेटाइजेशन इज डन यू कैन डू अफिलिएट्स. सो कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी का डील ले लिया और उसमें एक अफिलिएट लिंक डाल दिया. जितना अफिलिएट लिंक पे बेच रहा वो बिक रहा होगा, आपको एक रेवेन्यू शेयर या एक सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन मिल जाएगा. अफिलिएट्स इज बिग बाय डिफॉल्ट. थर्ड इज आईपी क्रिएशन. आईपी क्रिएशन इज आप एक कंपनी के पास जाते हो और आप बोलते हो मैं आपको सीरीज ऑफ कंटेंट बना के आपको मैं दूंगा जिसका एक डेडिकेटेड नाम और ऐसा रहेगा. सो फॉर एन एग्जांपल, my style is, let's say I do piece to the camera commentary on ads. I go to a Meta tomorrow and I say I will make a documentary series podcast with small business owners of India, और ये 20 एपिसोड एक सीरीज रहेगा. इसका स्टाइल ऐसा दिखेगा वैसे दिखेगा. आप मुझे इतना अपफ्रंट पैसा दो, मैं करूंगा. दैट इज थर्ड, दैट इज अ वेरी बिग टेरिटरी टू वर्क अराउंड. सो मेटा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, लेट्स से नेक्स्ट ईयर का यू फिगर आउट विथ सम इंटेलिजेंस फ्रॉम समवन कि उनके लिए नेक्स्ट साल की प्रायोरिटी है स्मॉल बिजनेस ओनर्स को एम्पावर करना. So now since it is in their priority, you are trying to go and pitch them. So this is just an example, but similarly. Then your fourth is launching digital products. आप courses बेच सकते हो, consultations बेच सकते हो, e-books बेच सकते हो, PDFs बेच सकते हो, which is primarily called a digital product. Then you can start building a business of your own. You can do brand endorsements, which is a long-term lock-in deal. So अगर आप एक creator हो जो मस्त कुर्ता पहन के अलग अलग टॉपिक से बात करता है, यू कैन रीच आउट टू अ मान्यवर एंड यू कैन से दैट हे आई वांट टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर जेन जी स्टाइल. लेट्स से मान्यवर अगर कल को लॉन्च करता है एंड ये 1 साल का लॉक इन है, आप कर सकते हो. यू कैन डू टाइटल स्पॉन्सरशिप्स. लाइक रणबीर ने अपना TRS का टाइटल स्पॉन्सरशिप क्लोज किया था, आई थिंक विद 7 अप स्प्राइट, आई डोंट रिकॉल. राज ने पोर्टर के साथ किया हुआ है. इट्स अ वेरी लॉन्ग, लाइक अभी एसएस के साथ में भी है. एसएस के साथ है ब्रांड एम्बेसडर, पोर्टर के साथ है टाइटल स्पॉन्सरशिप. उस पे you can rent out your team as a service to other people. So if you are a podcaster or if you are a media company, you have production team. You can rent that to someone else. You can rent your space to someone else. You can monetize your space. एक एक चीज स्पेस का monetize हो सकता है. ये बुक monetize हो सकता है यहाँ पे जो रखा हुआ है. किसी को बोल दिया कि आपका नया बुक लॉन्च है, डाल दो यहाँ पे, मैं आपसे 50,000 लूंगी. कॉफी मग रख लिया ब्लू टोकाई से, उनको छोटा सा चार्ज कर लिया. सो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस स्पेस कैन बी मोनेटाइज्ड एज वेल. सो मोटा मोटा जितना मैंने स्पेस बताया यही टोटल घुमा फिरा के स्पेस है. इसके बाहर को स्पेस एग्जिस्ट करते हैं लाइक को ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी. कोई क्रिएटर जो बहुत बड़ा हेल्थ क्रिएटर है गोइंग टू अ न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एंड सेइंग दैट हे आई विल बी योर ब्रांड एम्बेसडर. मैं इन्फ्लुएंसर फीस के हिसाब से अगर चार्ज करता तो मैं इतना लेता. आई विल डू अ डिस्काउंटिंग बट आई नीड 5% इक्विटी इन योर कंपनी. या एज अ क्रिएटर आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई एम इन्वेस्टिंग. टोटल गैमेट घुमा फिरा के इतना बच जाता है. So now we'll have a rapid fire round where I'll expect the one word or one line answer. Okay. Simple. Okay. One word is tough, but I'll try my best. Okay. So in one line, what Buzz Lab is doing? In one line. Content-led growth company is what we call ourselves. We help brands to crack content marketing in a more data-centric way, जिससे कुछ revenue sense बने. Okay. So you have worked with Filter Copy, Dice Media, and other media production houses also. So what is that one experience or that one moment made you learn a lot? बहुत सारे moments हैं, but I vividly recall this one moment where my boss, one of my boss, actually I had multiple bosses, was teaching me community management. और वो कैसे सिखा रहा है कि सिंधु इमेजिन कर एक नेबरहुड कैसा होता है. नेबरहुड में इतने लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. नेबरहुड का एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट सेट करता है नेबरहुड का रूल, विच मीन हर नेबरहुड के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं. लाइक मेरे नेबरहुड में लेट्स से 3 स्टेप ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज अलाउड, दूसरे नेबरहुड में अलाउड नहीं है. ये एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल को जाके अप्लाई कर वाइल बिल्डिंग अ कम्युनिटी फॉर योर कंपनी, और ये वो जायज़ होगा. सो वहाँ पे एक प्रिंसिपल होगा, वहाँ पे मॉडरेटर्स होंगे, वहाँ पे ये होगा. दैट इज द फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने सिखाया कि रियल वर्ल्ड को देख के डिजिटल वर्ल्ड रेप्लिका बनता है.
ना कि डिजिटल वर्ल्ड का कोई और रेप्लिका देख के रेप्लिका बनाओ. That was a big eye opener from a teaching perspective. Like right now, I do everything by looking at the real world and trying to convert that into a digital framework. Okay, got it. First 3 seconds. So what's your go-to mode for that first 3 seconds to capture the attention? In content creation, हाँ, in content creation. कि मैं फर्स्ट 3 सेकंड में क्या बोल के ये करता हूँ. हाँ, मतलब what kind of patterns you have observed that will work definitely. So first 3 second you have only 3 control. या तो you do, I call it pattern interrupt. या तो you do something in the edit, या तो you do something in the camera angle, या तो you do something in the dialogue. Okay. That's it. इसके बाहर और कुछ exist नहीं करता है. I generally do it in the camera angle and the dialogue. Yeah. Okay. Virality. Boon or trap? Majorly a trap Okay. for creators. Okay. So you mentioned that you have tried with the trial reels with 600, 700 reels. How many followers you got and how someone can expect from that? 20-25K followers I Follower. got from trial wheel. With volume of everyday? 700 to 800 total posting. No. 700 to 800 posting in the last 2 months. I have been doing it for the last 4 months. So Okay. yeah, approximately 2000 trial wheels. But I have tested a lot. So my it is not the volume. I was talking about the micro cohorting, right? It is मैंने इतना दिमाग लगाया. So trial wheel is the only place जहाँ पे मैंने दिमाग लगाया एक्सेल शीट पे पूरा. हुक ये रहेगा, इसका कोहॉर्ट ये है, ये कोहॉर्ट का कितना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम एनालिसिस, ये वो. तो ट्रायल में बहुत डेटा एनालिस्ट दिमाग लगाया है, तब वो जाके काम किया है शायद. Okay. So the one creator or brand with a great test right now. So brand is District. Okay. District का Instagram page, I love it. Creator in terms of taste. I used to like Varun Maya, now it is just repetitive. Yeah. Distribution cheat code, the platform you would bake on today and the one you would ignore. Instagram and LinkedIn, I would not bet on. Interest. The one reason content grows but revenue does not. When your content is not a monetizable property, like for an example, if you do shit posting, if you create content like I'm a corporate girly, वो जो दिन भर उसमें brand कहाँ घुसाओगे? So if your content is not fit for the brand, point number 2, the distribution that you have is by an audience or is for an audience जो कुछ खरीदने वाला audience नहीं है. Like 18 to 24 people following you just for the looks of you. आप उनको नहीं बेच सकते एक फैशन ब्रांड या whatever. Generally ये दो होते हैं. Okay. तो अभी अपने जो कंटेंट क्रिएटर मतलब जिस तरीके से रेवेन्यू मॉडल जनरेट होता है इन like what matters the most, that could be my question, कि your engagement, your views or your followers? Views का follower demographic is extremely important. So Okay. 10,000 views, 25 plus age, you can charge a 50, let's say you can charge a 20K. 10,000 views, 18 to 24, you will charge an 8K. 10,000 views, 18 to 24, following you because you are hot. You will be hardly able to charge a 5K. 10,000 views, 18 to 24, majority female following. You will be able to charge a 15K. So it's very contextual. ब्रांड टू कंटेंट फिट, डेमोग्राफिक क्या है, क्या बोल के आपने ऑडियंस बनाई है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है. और जब ब्रांड्स आपको डील देते हैं तो which are the 3 major things that they look forward to? They look for views, average views for sure. They also look for engagement rate, which is likes, comments and shares. They look for आप कितना ज्यादा ब्रांड यूज करते हो. अगर आप बहुत ज्यादा करते हो, they won't be interested because आप तो बिकाऊ क्रिएटर हो. अभी मेरा बेचोगे, कल को कुछ और बेचोगे, then मतलब आपका कोई ईमानदार नहीं है उस पे. So they will look for that. They will look for profanity content as well, which is called brand safety. आप गाली देते हो, मेरे प्लेबुक में नहीं बैठेगा. I will not do that. So they will look for brand safety as well. Okay, got it. Retention versus reach, what matters more for Retention. viral views versus loyal audience, what would you choose? Loyal audience. Idea versus distribution, what wins? Distribution. YouTube versus Instagram, which builds a stronger business? Business, YouTube. Short form versus long form, which compounds faster today? In terms of business, you have views. Business. YouTube. Long form. Long form. Brand building versus performance marketing, what should start first?
Performance and then Okay. Creative first marketing versus paid ads, which is the real one. use creator to pay ads. Okay. So there are some creators which are going viral. So I'll take the example of Samriddhi Makhija. Somebody creates a real bunch na wo camera shaky content which is around Yeah. I am 30 days in Bangalore. Yes, 30 days. It's been 60 plus days. 60 plus is Yeah, and she give her unique perspectives. yeah. Yeah, it could be related anything. So what do you think? Why that kind of content is going viral? I think it's just relatability. अगर मैं भी कल को ऐसे चलता फिरता डाल दूं, guys मैं 2 साल से बैंगलोर में हूँ और यहाँ पे ये नौटंकियाँ चलती हैं. इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर करते हैं, वो चलते हैं जिसका बुक है. 2 साल से बैंगलोर में हूँ and I hate it. ये अगर बुक है. It just generates a lot of relatability. कि people who are in Bangalore who are not liking it will start following it. So it's just the relatability fact. Okay. About वो जो rawness है यार मेरे को समझ नहीं आता ऑनेस्टली. वो रॉनेस जो है वो रॉनेस चल रहा है अभी लास्ट 1 साल से, वो चलता रहेगा. उसके ऊपर क्या बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आई एम नॉट अ वेरी क्लियर बिलीवर ऑफ दैट. लाइक अगेन मैं वही कह रहा था ना कि रैंक करता हुआ इंसान डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा, उसके ऊपर बिजनेस बिल्ड करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यू कांट बिल्ड अ बिजनेस ऑन टॉप ऑफ इट, नीदर यू कैन मोनेटाइज इट. ठीक है 3 महीने में 1-2 ब्रांड्स आ जाएंगे, आप कर लोगे. यू कांट बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्लाईव्हील फॉर इट. Okay, wow. And the next example is Prakar Gupta, where he made a like global channel, and I saw your tweet also on that. So, what kind of analysis you have done, and what is your take on that? सो उसने प्रखर कुछ कमेंट किया था, वो नॉट उटपटांग बट या कुछ कमेंट किया था. आई थिंक वो भी मेरा पोस्ट पूरा पढ़ा नहीं था. सो बेसिकली ही सेड दैट ओके कि लोग जो मेरा कंटेंट नहीं देख रहे हैं वो ये कि कमेंट कर रहे हैं. मैंने पूरा कंटेंट देख के एनालाइज करके पूरा कमेंट डाला था. द कमेंट वाज बेसिकली दिस. आई एम आई हैव मैसिव रेस्पेक्ट फॉर हिम जो उसने मूव लिया है. आई वांटेड हिम टू टेक दैट मूव. आई वांट ऑल द क्रिएटर्स टू टेक दैट मूव. आई थिंक द मेजर स्क्रू अप इज उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया. Okay. The thumbnails should have been the same or similar. ये रेडिकलाइजेशन जो पूरा उसने कर दिया, व्हाइट एंड ब्लैक थंबनेल्स, ह्यूबरमैन स्टाइल बाहर चलता है, इंडिया में नहीं चलता है. स्क्रूड अप द होल एल्गो, द होल पूरा का पूरा एल्गो. उसको वो चेंज करने की जरूरत नहीं थी. द टाइटल्स आर पुअरली रिटन, दे आर नॉट एसईओ फर्स्ट. प्लस उसका जो पुराना स्टाइल था, आई थिंक व्हाट ही शुड हैव डन इज उसके पुराने स्टाइल को ही कंटिन्यू रखता, बस गेस्ट चेंज होते हैं. कुछ अलग करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, ही चेंज द आइडेंटिटी फ्रॉम a person who is just laughing every time and is not laughing, but that is still fine. चलेगा, आप बिना laugh के भी कर सकते हो. But my perspective was the whole channel got screwed up, not because he started doing very smart content. निखिल कामत भी रेड आलिया को लेके आता है और वो 700 के करता है, 500 के. So it is a wrong theory that smart content इंडिया में कोई नहीं दिखता है. अगर वो ट्रू होता तो फिर निखिल को भी कोई नहीं देख रहा होता, because वो भी लेके आया है smartest to smartest people. I think it's just a distribution flaw that he made. That is why the numbers went down. That was the whole analysis of the post. It was not कि content क्या है, कैसा है, whatever. Yeah, that's mostly it. Okay. Anything you would like to say to prefer if he is watching this? Especially distribution. Distribution can be. Yeah, I think just get back to the older distribution. Content is fun. Just get back to the older distribution. I do understand why he might have done. He might have done to change the whole persona, packaging. यार वो YouTube में काम नहीं करता है. YouTube में every time I have noticed you do a reset in packaging, in thumbnail style, the algo is trying to find always a new audience. Okay. वो is a very risky affair. वो करना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आप स्मूथली करके निकालो. Like अगर भी वो करना है ना तो उसको phases में करो, धीरे 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 धीरे. The first podcast that goes out has similar thumbnail style, different packaging. See how it happens. Second podcast that goes out थोड़ा सा tone down thumbnail, उसके बाद थोड़ा सा और, उसके बाद थोड़ा सा और. वर्सेस आज डाल दिया, गाइस कल से मैं पूरा का पूरा रीसेट मार रहा हूँ, कल से मैं कुछ और कर लूंगा. साउंड्स वेरी कंट्रोवर्शियल, साउंड्स वेरी नाइस कि लोग शायद अप्रिशिएट करेंगे. आई थिंक एल्गो अप्रिशिएट नहीं करता है, इवन इफ लोग अप्रिशिएट करो. Understood. Yeah. Okay. So in short, can you tell like who is Sindhu Biswal for the audience? Just a curious guy who is trying to understand patterns of every field. That's all, nothing else. And there's a storyteller जो हमेशा फॉर्म ढूंढ रहा है, अलग अलग फॉर्म्स. Okay. And what your company does and what is your experience been so far? Just in short. Whatever I said, who is Sidhu Viswal, company is a representation of that, nothing else. My job is to create more and better versions of me. That is my only target.
for the next year. I want to be redundant from the company. I should not be the most important person in the company is my goal. And my goal this year is nothing, just to increase more clientele, increase more revenue, do greater work, expand internationally, um, train people better, automate a lot of systems. And if I am able to build 2 replicas who are like me, I'll be happy. Thank you, Sindhu. It was nice talking to you. Same. I hope that our audience will get a lot of value from this. Yeah, absolutely, absolutely. My stress test is simple. किसी ने अगर नोट लिया, किसी ने अगर कोई सोशल मीडिया में शेयर किया कि okay, these are the notes, I get a feedback loop कि किसी ने पढ़ा है. Because there is no way for me to know कि तुम्हारा और मेरा बात किसी ने सुना हुआ है. Correct. सेकंड, किसी ने अगर जनरली डीएम करके डाउट पूछा, हमने राखी के इसमें पॉडकास्ट में मैंने देखा हुआ था, ये इसने अपने ये पॉइंट बोला, क्या हो इसका मतलब था, देन आई नो कि किसने को सुना हुआ है. आई डोंट केयर अबाउट कौन देख के निकल गया, बिकॉज देन आई एम लाइक कि ठीक है, तुम देख लिए, कुछ इंप्लीमेंट नहीं किए, बैठ गए चुपचाप. सो आई जेन्युइनली होप पीपल टेक notes and try to improve a lot of things. Okay. So I request to audience, take your notebook and pen and mark the important points. If you have any doubts, I'll put his Instagram handle in the description and you can reach out to him anytime. Thank you.